always be on mute as soon as you join. Yes, so we'll always remain on mute as soon as we join. And now I'm seeing that most of you are following this norm. Right now our classes are moving in a more disciplined manner. Great. Kartiki, second one. Raise your hand for any doubt. Great. I can see 90% of the class is following this rule now. Few students are still notorious and naughty, which who are not following these rules. So there will be consequences now if you don't follow this rule. Like I will put you in the waiting room, or either I will deduct 2 marks from your homework. So these will be the consequences if anybody is not following the rules. Yes, Prasad, the third rule. Always keep your video on. Yes, call out the students who have not switched on their videos. Arya, Tanvi. Yes, Arya, Tanvi, Samruddhi, and Sanskruti. Yes. Thank you so much for switching your videos on. So great. With that, let's get started with our science class today. So in today's science class, we are going to learn about the value of food around us. All the different kinds of food which we eat, which we get on our plates. So we are going to learn about its value. What is the value that food is holding, right? So basically all the different types of food which you find on your plate, like bhakari, like roti, rice, vegetables, dal. So what is that value of food? What is the story of that food? So we are going to learn about that in today's class. So are you all excited to know the story of your food? How is this coming on your plate? Different kinds of food. Type yes in the chat box, or you can type no as well if you are not excited. It's just doing a temp check. Great. So most of you are excited. What page number? I'll tell you the page number after the class. For now, focus on the lesson. Keep your notebooks, pen and pencil ready with you to take notes, right? Because taking notes help us to understand concepts better. Yes, Arjun. Any doubts? Great. So now all of you can see this image on your screen. So these are some really tasty food. So the first question which we are going to think about is that, do you like eating tasty food? And the second question is, have you ever thought of how do you get all these food items on your plate? So I think for the first question, everybody's answers will be yes. So that I'm pretty sure of that nobody would enjoy eating food which is not tasty. So everybody likes to eat tasty food. But the second question, that have you ever thought that all these different types of food, how are you getting this on your plate? How are you getting all these different kinds of food on your plate? Type it in the chat box, and people who would like to come off mute and share, they can raise their hand. I will ask people who have kept their videos off. Tanvi, can I request you to come off mute and share how are you getting all these different kinds of food on your plate? Tanvi, are you there? भैया मेरे को आपने म्यूट किया। अच्छा, आपको कर दिया। चलो तो आप ही बता दो यश। मैं क्या क्वेश्चन है भैया? अच्छा, आपने ध्यान से नहीं सुना। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ये अलग अलग टाइप का इतना सारा टेस्टी खाना कैसे आ रहा है आपकी प्लेट पे? इसकी जर्नी क्या है? इसकी जर्नी पहले ये खेत में लगाते हैं, बाद में ये आता है, बाद में ये मार्केट में आता है, बाद में हम इसके बाद हम इसे खरीदते हैं, इसके बाद हम पकाते हैं और इसके बाद ये हमारे प्लेट में आता है।
ग्रेट. सो यश इज सेइंग पहले खेत में लगाते हैं, उसके बाद फिर मार्केट से हम लोग लाते हैं, फिर पकाते हैं, एंड देन फिर ये हमारी प्लेट में आता है. Who else is willing to share? Yes, let's hear from Omkar. भैया मतलब जो अलग अलग रेसिपी होती है उससे हम मतलब अलग अलग चीजें बनाते हैं और उससे हमारे मतलब प्लेट में आता है, मतलब हमारे थिंग से वो प्लेट में आ जाता है. ग्रेट. अलग अलग रेसिपी बनाते हैं और प्लेट में आ जाता है. अर्जुन. भैया अलग अलग फार्म से अलग अलग वेजिटेबल्स आते हैं और अलग अलग फैक्ट्री में आते हैं और फिर वो मार्केट में आते हैं और मार्केट में फिर किचन में आते हैं, फिर किचन में आके वो हमारे प्लेट में आ जाते हैं. Farm से kitchen. So I am hearing story that basically it is traveling all the way from farm to our kitchen. So that is the story. So this is a very brief answer which all of you gave, right? So what we are going to do in today's class is look at this process in detail कि farm में actually में हो क्या रहा है, फिर farm के बाद market में क्या हो रहा है, and what are each and every step after which we are getting food on our plates. ठीक है, इतने सारे food items हमारे plate पे आ रहे हैं. So we are going to look at it in very great detail in today's class. So we are going to basically, if in simple words I put out, we are going to learn about the story of food. Kartiki, what are we doing in today's class? See the new food items and learn about that. What we are going to learn about that? Food. About what? In what context? मतलब फूड के बारे में क्या आप सीखने वाले हैं? खाना पकाना सीखने वाले हैं या फिर खाना खाना सीखने वाले हैं? क्या सीखने वाले हैं? वैल्यू ऑफ फूड एंड फूड कहाँ से आ रहा है बेसिकली आपकी प्लेट में, इसकी जर्नी क्या है. सो सबने बोला कि फार्म से आ रहा है. सो फार्म से प्लेट तक फूड की क्या जर्नी है? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट इन टुडेस क्लास. इज एवरीबॉडी क्लियर एंड गुड टू गो? गिव मी अ थम्स अप. Great. So the food item we are going to discover now is bhakari. ठीक है, bhakari, everybody know what is bhakari? Bhakari is roti or chapati which is made up of bajra. Okay, it is made up of roti or chapati which is ultimately made up of bajra, B-H-A-R-A. So everybody write this down in your notebook. How do we get bhakari on our plates? The story of food, and then write bajra. Bhakari is made of bajra. Write this then. Give me a thumbs up once you have written. Thank you, Kartiki. Thank you, Samruddhi. Sanskruti, are you writing? I can't see you writing in your notebook. Where is your science notebook? I am taking bhaiya. Great. Give me a thumbs up once you are good to go. Yes, Roshali. Yeah, it's a bhakri. Yeah, it's bhakri, na? It's a dish which is made in Maharashtra, na? Yes. Just let me know if I'm pronouncing this correctly. Is this pronounced as bhakari or bhakri? Bhakri. Okay, thank you for correcting me, Roshali. So actually, I haven't eaten this dish, so I too came to know about it for the first time. Roti and chapati, I know it is made up of wheat, but bhakri is made up of bajra. So I too heard about it for the first time.
but it is a popular dish in Maharashtra, so I am assuming that all of you might have ate it, right? Just give me a minute, I'm getting a phone call, and I'll get back to you. Yes, so I hope all of you have written it by now. Okay, so I want to know how many have you already eaten bhakri? People who have eaten it. So Prasad is raising his hand, Rushali is raising her hand, Samruddhi is giving a thumbs up. So great. So all of you have already eaten it. So next time your mom prepares bhakri at home, na, invite Bhaiya also. Invite Bhaiya also. Bhaiya also wants to taste. How does it taste like? Will you invite Bhaiya? Yes or no? Great. I'm so happy I'll get invited to eat bhakri. Great. So now that you have noted down, what are we going to do is we are going to look at its story. What is the story of bhakri? How is this coming on our plates? हमारे प्लेट पे कहाँ कैसे पहुंच रहा है? इसकी बहुत लंबी कहानी है. इसके पीछे की जो कहानी है ना वो इतनी लंबी है कि पूरा सुनते सुनते अभी हम आज का पूरा 1 घंटा इस भाकरी की कहानी के पीछे स्पेंड करने वाले हैं. सो सभी एक्साइटेड है भाकरी की कहानी जानने के लिए? ग्रेट. सो कहाँ से ये कहानी शुरू होती है? तो ये कहानी शुरू होती है बेसिकली खेतों से, फ्रॉम अवर फार्म्स. तो पहले फार्म में क्या करते हैं? वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग अवर सॉइल. द फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. So what you can see in this picture is a tractor, okay, and a tractor, and behind this tractor you can see some machine like equipment is there, so which is being used to plow the soil. What does plow means? Plow means खोदना. ठीक है, plow means खोदना. तो जो जमीन होती है पहले उसकी खुदाई स्टार्ट की जाती है. ठीक है, तो इस मशीन को यूज करके ट्रैक्टर की हेल्प से हम क्या करते हैं? प्लो करते हैं फील्ड को. तो बेसिकली मान लो ये मिट्टी है. ठीक है, ये मिट्टी है एंड ट्रैक्टर आपने लिया. ठीक है, ट्रैक्टर आपने लिया एंड यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है. और फिर जब ट्रैक्टर को हम चलाते हैं, व्हेन वी मूव द ट्रैक्टर, व्हाट हैपेंस? ये मिट्टी अपने आप खुदना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, ये खुदना स्टार्ट हो जाती है. देन एक बार मिट्टी खुद गई, उसके बाद हम क्या करते हैं? जो मिट्टी के ढेले बने हैं ना बड़े बड़े, the lumps of soil which are made, what do? We crush them. उसको हम लोग क्रश करते हैं. ठीक है, क्रश करने के बाद फिर हम लेवल करते हैं. we level the field. उसको हम लेवल करके एक लाइन में ले आते हैं. ऐसे एक लाइन में ले आते हैं. फिर अगली अगली मिट्टी जो खुदी हुई होती है उसको क्रश करके एक लाइन में ले आते हैं. एंड देन इस तरीके से हमारे पास रो बन जाती है. फिर इस रो में हम लोग सीड्स डालना स्टार्ट कर देते हैं. बाजरा के जो हमारे सीड्स है वो इधर हम डालना स्टार्ट कर देते हैं. राइट. So this is our first step, which is the preparation of soil. इतनी बड़ी स्टोरी में इस कहानी की शुरुआत हो रही है मिट्टी की तैयारी से. पहले हम मिट्टी को प्रिपेयर कर रहे हैं बीज बोने के लिए. So if everybody is clear with this first step, give me a thumbs up and note this first point down in your notebooks. And for any doubts, raise your hand. Omkar is giving a thumbs up. Karthik is giving a thumbs up. Yash has a doubt. Yes, Yash. भैया मैं ट्रैक्टर पे बैठा हूँ, उसमें से मतलब 3 ऐसे हुक होते हैं, उसमें से वो ट्रैक्टर आगे ले जाते हैं तो उनका एक लेवल हो जाती है. लेवल हो जाता है. यस. सो Yes. या सो हम वही कर रहे हैं. हम इसको गेहूं, बाजरा, ज्वारा, इसको हम ना ट्रैक्टर में एक मशीन होती है उसमें डाल के हम उसको पेरनी बोलते हैं हमारे मराठी में. पेरनी. अच्छा. That's awesome, Yash. Thank you for sharing your insights. Okay. So I was sharing manual process with you. ठीक है, कि मैनुअली हम हाथ से कैसे करते हैं. ठीक है, बट दैट्स ग्रेट. अभी आजकल हमारी जो ट्रैक्टर्स है काफी एडवांस्ड हो चुकी है. सो वी हैव मशीन्स फॉर एवरीथिंग. इवन फॉर सोइंग वी हैव मशीन्स. बट दिस इज हाउ पीपल यूज्ड टू डू इट इन प्रीवियस डेज, इन ओल्डन डेज. बेसिकली पहले लोग ऐसे ही करते थे.
Give me a thumbs up once you are done writing. Thank you, Kartiki. Thank you, Samruddhi. Thank you. Thank you, Tanvi. Waiting for Tanvi, Yash, Swaraj to give me a thumbs up. Meanwhile, Samruddhi, can you quickly explain the first point once again? Firstly, we prepare the soil and then we crush the limbs of the soil and then we leave it to ready for sowing. Thank you so much for reading that out, Samruddhi. Can you quickly explain the meaning of these two terms as well? Crush the lumps of soil and level the field. Means we will crush the soil with our hands. Yes, and leveling the field means? Um, which one do you This one. say? Level the field to make it ready for sowing. Leave the field to means we will put the seeds and leave it to ready for putting seeds. Okay, so I can see some confusion is over here. So leveling the field means, if you closely observe this picture, what you will see is that this is one row. This is one row of soil and this is another row of soil, right? So can you see a symmetry over here? आपको एक जैसा दिख रहा है कि एक जैसी दो रो बन रही है मिट्टी की? Can you observe Yeah. this in the picture? So this is what called leveling the field. मतलब फील्ड को एक लेवल पे लाना बेसिकली, ताकि हमारा जो सोइंग के लिए जो हमारी जो मिट्टी है वो रेडी है, हम एक लाइन से रो में लगा सकते हैं एक एक करके सीड्स. Great. So with that our first step is over now. Now let's see what is our next step in this journey, this long journey of getting bhakris. Now we start sowing the seeds in soil. ठीक है, एक बार जब हमारी मिट्टी रेडी हो गई, अब हम क्या करेंगे, बीज को बोना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, मिट्टी में बीज को बोना स्टार्ट करेंगे, यहाँ बीज डाल देंगे, डालते जाएंगे. So now everybody take a note of this second step. Give me a thumbs up once you are done. Yes, Samruddhi. By mistake it happened. Yes, Kartiki. भैया मुझे मतलब मुझे लगा फर्स्ट हमें अपने मन से लिखने से मैं कुछ मतलब मैंने वो देख के नहीं लिखा था फर्स्ट स्टेप. तो देन आई राइट मतलब मैं दूसरे पेज पे क्लास खत्म होने के बाद मैं लिख लूंगी. ठीक है, अभी जो इतने भी नेक्स्ट स्टेप्स आने वाले हो उसको वैसे ही लिखूं या अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बट दिस विल हेल्प यू टू रिवाइज इट इन अ क्विक फैशन. That is why take a note from here. Great. So now that our first and second steps are in place, let's look at what will be our third step. So now अभी मिट्टी रेडी हो गई, ठीक है, हमने बीज भी बो दिया, बट कभी आपने सुना है कि खाद डालना बहुत जरूरी है मिट्टी में, right? So खाद डालना is one of the important steps. So which is our next step, that we add manure to make the soil full of nutrients. See, this man is doing what? He is adding manures and fertilizers. What is manures? Manures means nothing but खाद. खाद तो सबको पता है क्या होता है, right? So खाद डालने से बेसिकली होता क्या है, मिट्टी में हमने एक बार खाद डाल दिया तो इससे क्या होगा, बेसिकली योर सॉइल बिकम्स फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच हेल्प्स योर प्लांट्स टू ग्रो. जो आपने सीड्स डाले हैं उसको ग्रो करने में हेल्प करता है ये खाद. ठीक है, वो सीड जो है वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करे एब्सॉर्ब करेगा, वाटर को एब्सॉर्ब करेगा, एंड देन ऑल दीज थिंग्स आर make it basically going to help it to grow. It's going to grow using all of these. Yes, Yash. भैया मतलब हम कैसे मतलब हम कैसे जब हम खाना खाते हैं वैसे ही मतलब सॉइल का खाना होता है वो seeds. Absolutely, Yash. Yes. So Yash has beautifully put it, like the way we eat food, right? We eat food to get nutrients from it. Similarly, the food for plants is
द फूड फॉर प्लांट्स इज मैन्योर एंड वाटर. सो मैन्योर में बेसिकली क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं. So when the plants are getting food and water in good quantity, then they are likely to grow and remain healthy. Simple. Give me a thumbs up if everybody has noted it down. Now who is brave enough who will quickly summarize all these 3 points? जल्दी से ये तीनों पॉइंट फटाफट बता दो so that we are able to synthesize our learning. Yes, Sanskriti. Firstly, we bleach the fields and then crush the lands of soil. Then we will leave the field to make ready for sowing. Then we sow the seeds in the soil. Then we add manure to make the soil full of nutrients. Sanskriti, can you quickly explain the meaning also of all these 3 points? इन तीनों पॉइंट्स का मतलब क्या है? पहले हम उसके लिए गड्ढा खोदेंगे, फिर उसमें सीड्स डालेंगे. फिर 2 points फिर उसे absolutely पानी correct. देंगे. हाँ, पानी के साथ साथ और क्या दे रहे हैं? फिर उसमें से छोटा छोटा सीड्स आएगा, वो हम उसे वो सब तो बाद की कहानी है. आएगा उसमें से छोटा. वो सब तो बाद की कहानी है संस्कृति. एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये जो थर्ड स्टेप है हमारा, इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? व्हाट आर वी एडिंग एंड व्हाई आर वी एडिंग? Okay, who can help Sanskriti here? Sanskriti is absolutely correct for the 2 points, but on the last point she seems to miss something out. Yes, Prasad. थर्ड पॉइंट इज हम पौधों को खाद डालते हैं. Why, Prasad? Why is the question? क्योंकि वो बढ़ सके, पावर मिल सके अच्छी खासी, और उनका खाना भी होता है. Yes, so absolutely. So manure is full of nutrients and nutrients helps plants to grow. It's like a food for the plants. So great. We are now clear with these 3 steps. So do you think now your bhakari is ready? Do you think it is ready? Absolutely not. There are a lot of steps which are left behind. So this story is not over yet. So let's look at what will be the next set of steps to get the bhakaris, tasty bhakaris on our plates. So the next step is watering our seeds. Now that हमारी soil ready है, हमने बीज भी बो दिया, अब soil में खाद भी डाल दी, अब क्या करेंगे? Plants को क्या चाहिए grow करने के लिए? पानी चाहिए. Like all of you need water to live, to remain hydrated. Similarly, plants are also living organisms, so they also need water so that their seeds can grow and ultimately the plants can grow. So the process of watering the plants, for the purpose of agriculture is called irrigation. So जब प्लांट्स को आप भारी मात्रा में पानी दे रहे हो, ठीक है, ताकि वो उग सके, तो इस चीज को हम इरिगेशन बोलते हैं. एवरीबॉडी मेक अ क्विक नोट ऑफ दिस पॉइंट. यस रुशाली, आई कैन सी फ्यू हैंड्स आर रेज्ड. भैया मैं बताऊं, मेरे को हाँ. आपने mute कर दिया. सॉरी यश, इट वाज रुशाली's turn. यस. भैया मेरा 3rd नंबर का नहीं हुआ. आप नोट नहीं कर पाए रुशाली? नहीं, थोड़ा सा ही रह गया था. अच्छा, कोई बात नहीं. क्लास के बाद आई विल सेंड यू पीपीटी, आप वहां से देख के फिर से नोट कर सकते हो. ठीक है. फॉर नाउ नोट दिस पॉइंट. And while noting, ensure that you are understanding what is written as well, right? Bhaiya is explaining you the meaning, but make sure that you are able to synthesize it and really understand what's going on. And अगर लिखते लिखते आपको कोई doubt आ जाता है ना, then you can raise your hands and ask. Yes, if you don't have any doubt, then you can put your hand down. आपको कोई डाउट है यश? बोलो. भैया मतलब जितना चाहे पानी मतलब हम सीड्स को देते हैं क्या थोड़ा ही देना पड़ता है? मॉडरेशन में हम देते हैं. मॉडरेशन मतलब मीडियम लेवल पे देते हैं. ना ही ज्यादा, ना ही बहुत ज्यादा, ना ही बहुत कम. बहुत ज्यादा पानी दोगे आप तो सीड्स सड़ने लगेंगे, फिर उसमें फंगस लग जाएगा, बैक्टीरिया लग जाएगा.
राइट। सो मॉडरेशन में देते हैं, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही। आपको प्यास जब लगती है तो आप कितना पानी पीते हो? जितना प्यास बुझाने के लिए काफी है उतना ही आप पीते ही जाते हो, पीते ही जाते हो, पीते ही जाते हो, राइट। सो सिमिलरली सेम थिंग applies on plants as well. Great, give me a thumbs up once you are done noting this down. Great. Now let's look at our next step. अब क्या करेंगे आगे? अभी हमने क्या किया, प्लांट्स को पानी दे दिया, ठीक है। तो क्या होगा, सीड्स ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। सीड्स ग्रो करना स्टार्ट तो करेंगे, बट अगर आप में से कहीं आप कभी गांव में गए होंगे तो आपने अगर कोई खेत देखा होगा, कोई फार्मलैंड देखा होगा, सो उसमें क्या होता है, आपके मेन प्लांट्स के साथ साथ बगल में काफी सारी घास भी आ जाती है, राइट। या फिर अगर आप अपने घर के ही बाहर निकलते होगे तो यहाँ वहाँ हर जगह आपको मिट्टी में घास दिखाई देती है क्या? डू यू ऑब्जर्व ग्रासेस इन फ्रंट ऑफ यू? ग्रीन ग्रीन ग्रास इन फ्रंट ऑफ यू, सॉइल पे यहाँ वहाँ कहीं भी ग्रो कर रही है। गिव मी अ थम्स अप इफ यू ऑब्जर्व दिस। Great, I can see Samruddhi has observed it. Samruddhi Roth has observed it. Yash has observed it. Anyone who would like to come off mute and give a voice to this thing? Why is this happening? Why do they see grass all around? मिट्टी में यहाँ वहाँ कहीं भी क्यों आ जाती है grass? Okay, let's hear from Arjun this time. भैया मतलब अभी हम कुछ भी खाते हैं नहीं क्या, मतलब वो चिप्स विप्स और मतलब कुछ भी लाते हैं, सब्जी वब्जी, वो मतलब इधर डस्ट होती है ना हमारे ग्राउंड पे। हाँ, तो फिर वो बारिश में वो ट्रीज हो जाते हैं उसके। ट्रीज हो जाते हैं किससे? चिप्स से? नहीं मतलब मतलब सब्जी भी नहीं कि वो लाते हैं, देखो वेजिटेबल्स जो हम ऐसे फेंक देते हैं तो उनसे ग्रास हो जाता है क्या? हाँ। Okay, that is one thing. Vegetables से grass होना, that is really a difficult thing, क्योंकि वो generally ideally what happens, it gets decomposed. How does this grow? Let me hear from one more person. Rushali. जैसे अर्जुन ने कहा कि हम मतलब वैसे कुछ भी चिप्स वगैरह खाते हैं और डाल देते हैं, वो मतलब गंदा हुआ हम कोई भी चीज डाल देते हैं, वो वहाँ बारिश का या हम किसी पानी डालते हैं, जब भी वो नहीं डस्ट नहीं रहते ना, तभी भी हम पानी डालते हैं ना, तभी ग्रास आती है। तभी ग्रास आती है। सी क्या होता है ना, बेसिकली जो सड़ी हुई वेजिटेबल्स हो गई ना, उनसे बेसिकली उनके प्लांट्स ग्रो करना इज वेरी डिफिकल्टी। सो बेसिकली जो वेजिटेबल है आप उसी का प्लांट ग्रो करेगा, एंड तभी ग्रो करेगा जब उसका सीड जाके जमीन के अंदर गया है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज ग्रासेस, अनवांटेड ग्रास, जंगली घास जो यहाँ वहां उगी रहती है, ठीक है, आप सबने देखी होगी। तो वो कहाँ से आ जाती है? उसको तो कोई जाके बोता नहीं है। कभी किसी को देखा है जंगली घास का कोई बीज जाके बो रहा है एंड उसको उगाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, राइट। वो अपने आप उग जाती है। सो वो अपने आप कैसे उग जाती है? क्या होता है, उनके जो सीड्स होते हैं दे आर सो स्मॉल कि जब हवा ही चलती है ना, जब विंड बहुत तेज चलती है तो क्या होता है, वो सारे उड़ जाते हैं। मान लो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर कहीं पे घास उगी हुई है, ठीक है। अब जब हवा चली, उनके सीड्स क्या हो गया, उड़ जाएंगे एंड फिर क्या होगा, 1 किलोमीटर दूर यहाँ आ जाएंगे मेरे घर के पास, एंड मेरे घर के नीचे आ गए, ठीक है, जमीन पे आके बैठ गए। अब जैसे ही बारिश हुई, उनको पानी मिल गया, जमीन में न्यूट्रिएंट्स थे, वो ग्रो करना स्टार्ट कर गए, बिना किसी मेहनत के जंगली घास ग्रो करना स्टार्ट कर दी। बट बताओ, जंगली घास से हमें कुछ मिल रहा है क्या? आर वी गेटिंग एनीथिंग टू ईट फ्रॉम दैट वाइल्ड ग्रास? नो, राइट। So it is unwanted. So what is happening here can happen in farms as well. Type yes or no in the chat box कि जो यहाँ पे हमारे घर के आसपास इतनी सारी जंगली घास अपने आप आ जा रही है, वो फार्म्स में भी आ सकती है, राइट? Yes, Samruddhi Roth. Samruddhi, you are raising your hand. Would you like to come off mute and share? भैया वो बारिश हुई तो वो अपने आप आ जाती है, अपने आप ही आ जाती है, राइट। सो जैसे यहाँ पे अपने आप आ जा रही है, हमारे एग्रीकल्चरल जो क्रॉप्स है, हमारा जो बाजरा का खेत है, वहां पे भी आ सकती है।
तो वहां पे जो इतने सारे घास आ गई ना, वो क्या करेगी, अब न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन करेगी। अब प्लांट में क्या है, अब बेसिकली नीचे जो सॉइल है, सॉइल के अंदर जो फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स है, दैट इज लिमिटेड। समृद्धि कैन गो बैक ऑफ म्यूट, यस, उसमें लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। सो अब जब घास आ गई यहाँ पे, जंगली घास इतनी सारी, तो सारा न्यूट्रिएंट और सारा पानी यही खा पी जाएगी। तो बेचारे हमारे जो बाजरा के प्लांट्स हैं उनको क्या मिलेगा, जो हमको मेन बाजरा जिनसे रोटी बनानी थी वो तो मर जाएंगे बेचारे, और जंगली घास लंबी हो जाएगी इतनी बड़ी बड़ी। तो इस जंगली घास का क्या करेंगे हम, बताओ क्या तरीका है फिर इसको हटाने का। यस कार्तिकी। हमें मतलब उन्हें मतलब निकाल लेना चाहिए। निकाल लेना चाहिए, राइट, एकदम उसको बेरहमों की तरह काट देना चाहिए। तो देखो यहाँ इमेज में ध्यान से देखोगे तो ये जो है इसको कट ही कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली वी व्हाट डू वी डू, वी कट दिस ग्रासेस डाउन, ठीक है, या तो कट कर देते हैं या जड़ से उखाड़ देते हैं, ठीक है, वी रिमूव इट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीडिंग, दिस इज कॉल्ड वीडिंग, ओके। If all of you are clear with this process of weeding, give me a thumbs up. Why do we do it and how do we do it? And if you have any doubt, you can raise your hand. भैया मेरा हो गया सब राइट करके। आप नेक्स्ट राइट करते होगे, हाँ। जिन्होंने नहीं लिखा, they note this point down and then give me a thumbs up. I can see a lot of people are raising hands. Okay, let me take your questions one by one. Yes, Prasad. Only for questions, ठीक है, समझ में आ गया आपको, then note it down. अगर कोई क्वेश्चन है then only raise your hand. Yes, Prasad. भैया घास उगती है लेकिन उनके बीज हमें दिखाई क्यों नहीं देते, इतने छोटे होते हैं, लेकिन पौधों के हमारे मतलब बाजरे के बीज बड़े क्यों होते हैं? बड़े क्यों होते हैं, छोटे क्यों होते हैं, राइट। सो प्रसाद, ये जो बेसिकली दिस थिंग इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या होता है, इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन natural selection and basically external factors. So this is something which you will learn in higher grades. Basically evolution में क्या होता है ना, आपके जो plants थे ना, बहुत सारे आप पीछे अगर जाते जाओगे ना, if we go millions of years behind, ठीक है, so we will find one universal thing which is called LUCA, last universal common ancestor, which is the common ancestor for all living beings. So this is one living form from which all other living forms arise, ठीक है, you can think of it this way. एक लिविंग फॉर्म था बहुत सालों पहले, ठीक है, पृथ्वी पे, हमारे प्लेनेट पे, एंड उससे ही अलग अलग टाइप के सारे एनिमल्स आ गए, अलग अलग टाइप के सारे प्लांट्स आ गए, ठीक है। तो आपकी जो ग्रास आई और आपका जो बाजरा का जो पेड़ आया, ठीक है, उनमें जो डिफरेंसेस आए ना, वो इस वजह से आए क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने उनका जो बेसिकली जो फंक्शन था एंड जो उनका स्ट्रक्चर था उसको डिफाइन किया। सो बाजरा के लिए सपोज से उसको सनलाइट मान लो, ज्यादा सनलाइट मिली उसे, ठीक है, एंड उसके कंडीशंस ऐसे थे which made it favorable कि उसके सीड्स बड़े हो जाए, ठीक है, उसको इस टाइप की कंडीशंस मिली। पर जो ग्रास थी, they basically didn't get conditions so that they can get their seeds very large, ठीक है, तो इसलिए उनके बीज छोटे रह गए। So this is something which arrives from evolution, natural selection and a lot of factors come into picture कि कौन सा प्लांट क्या बन रहा है, ठीक है। So this is something which you will learn in higher grades. But good question, Prasad. That's a great question. If you are thinking in that direction, that means you are already thinking like a scientist. I like such questions when you go above your grade level and ask questions which are not in alignment with your current grade level. Yesterday, Sanjana also asked a good question. So great. You are thinking in good direction. Yes, yes. भैया जो मतलब जो गंदगी होती है मतलब ग्रास की, भैया वो ग्रास मतलब उसके भी छोटे छोटे बीज रहते हैं क्या? कौन सी गंदगी यश? जो देखो हमारे घर के साइड में मतलब वैसे बहुत ग्रास होती है, इसीलिए उधर गंदगी डालते हैं सब, तो उधर उनसे वो बढ़ते हैं क्या उस गंदे पानी से? नहीं, गंदे पानी से नहीं बढ़ते हैं। बेसिकली जब कंटामिनेशन हो जाता है ना, जब गंदा पानी होता है तो क्या होता है, उस पर बहुत सारी फंगस आ जाती है। तो फंगस इज नथिंग बट डीकम्पोजर्स। फंगस आपकी गंदगी पे ही जम जाती है एंड बेसिकली उस गंदगी से ही वो न्यूट्रिएंट ले लेती है। तो वो अलग अलग टाइप के प्लांट्स ना जो होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। घास जो होती है वो आपकी गंदगी में भी ग्रो कर जाती है। सो इट इज नॉट लाइक कि गंदगी की वजह से घास ग्रो कर रही है, इट इज लाइक कि गंदगी में भी ग्रो कर जाती है, राइट?
Okay, Yash. So all of you have noted your points. Great. Any more questions? Great. So now we will move to our next stop. अभी तक हमारे पास जो भाकरी है वो हमारी प्लेट में नहीं आई है. अभी देखते हैं अभी और क्या करना है. ठीक है. अब हमने घास अपने भाकरी के जो बाजरा के जो हमारे पेट थे उनको हमने पानी दे दिया. जो घास फूस थी वी हैव कट इट डाउन. ठीक है. दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड वीडिंग. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल हार्वेस्ट अवर क्रॉप्स. ठीक है. वी विल वेट फॉर द प्लांट्स टू ग्रो. ठीक है. हम उनके लिए वेट करेंगे बाजरा के लिए. जब वो जैसे ही सारे बड़े हो जाएंगे एंड पक जाएंगे, ठीक है, तो हमको वो विजिबल हो जाएंगे. दे विल बी विजिबल. ठीक है. वी कैन सी देन बाजरा इन द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट. यहाँ पे हमें बाजरा के छोटे वो दिखाई देंगे. सीड्स जो है यहाँ पे सब प्लांट के ऊपर वो आ जाएंगे. सो जब बाजरा रेडी हो जाएगा, व्हाट वी विल डू इज वी विल हार्वेस्ट. वी विल कट अवर क्रॉप्स. अब हम अपने क्रॉप्स को कट करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. नाउ एवरीबॉडी नोट दिस डाउन. सो कटिंग द प्लांट्स व्हेन दे हैव फुल्ली ग्रोन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. मेक अ नोट ऑफ दिस एंड गिव मी अ थम्स अप वंस यू आर डन. Thank you, Karthik. Thank you, Yash. Thank you, Samruddhi. Sanskruti, I hope you have noted it down. Give me a thumbs up once you are ready. Thank you, Samruddhi. Thank you, Omkar. Great. So now most of you have given a thumbs up and are ready to go. I can see Yash is raising his hand. Yash, I will take up your question once we are done with the class. Okay. If it is if it is not something which is a burning question that you want it to be answered right here right now, then I can take this up after the class. Great. So now हमने हार्वेस्टिंग भी कर लिया. अब बताओ कि इज अवर भकारी रेडी. अब हमें भकारी मिल जाएगी क्या या और भी कुछ करना पड़ेगा? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स. Yes, so most of you are saying no, which is absolutely correct. अभी काम आधा ही हुआ है, अभी और भी काम बचा है हमारे पास. अब हम क्या करेंगे, जब हमने एक बार अपने प्लांट्स को कट कर लिया, ठीक है, बाजरा के प्लांट्स को कट कर लिया, अब क्या करेंगे, हम इनको पीटेंगे. ठीक है, इनको उठाएंगे और पीटेंगे. जैसे आप फोटो में देखोगे तो these people are doing what? They are taking their बाजरा plants and they are beating it. Literally ऐसे उठा के हम पीट रहे हैं. ठीक है, so this is called threshing. ठीक है, अब ये क्यों कर रहे हैं, ध्यान से सभी देखो. जब आप इसे पीटोगे तो उस प्लांट्स के अंदर जो बाजरा के जो बेसिकली आपके सीड्स लगे हुए हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, वो टूट जाएंगे उस प्लांट से. अब आप एक एक करके सीड को बीनोगे तो कितना टाइम लगेगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो जब उसको उठा के एक साथ सीधा पीट दिया तो वो क्या होगा, अपने आप टूट के बाहर आ जाएगा. द सीड्स विल ऑटोमेटिकली ब्रेक ऑफ फ्रॉम द बाजरा प्लांट्स एंड कम आउट. सो दैट इज व्हाई वी डू थ्रेशिंग. थ्रेशिंग मींस व्हाट, थ्रेश, लिटरली थ्रेशिंग द प्लांट्स. थ्रेश मींस पीटना, ऐसे जोर जोर से पीटते हैं उसको, ऐसे सारे सीड्स बाहर आ जाते हैं. as you can see the way they are doing it in the picture. Everybody take a quick note of this and give me a thumbs up once you have done. Thank you Yash. Thank you Kartiki. Kartiki, बड़ा फास्ट लिख रही हो आप, लिख भी रहे हो या नहीं? दिखाओ नोटबुक, दिखाओ अपनी नोटबुक, दिखाओ, शो मी योर नोटबुक. Great, great. You are writing at a good speed. Thank you. I can see Swaraj is writing. Omkar, Vedant, Aryan, Santosh, all of you switch on your video cameras so that Bhaiya can see whether you are writing or not. Great. So most of you have given a thumbs up. Thank you. So अभी क्या लगता है, अभी हमारे पेजेस सेपरेट हो गए. Are they good to go to the market right now? Type yes or no in the chat box if you think they are good to go into the market right now.
हमारे बाजरा के सीड अलग हो गए, अब इनको मार्केट भेजो और सीधा सीधा अब इनको खाना स्टार्ट करो। So I am seeing a couple of responses where most of you are saying yes, a couple of no's as well. Great. So basically they are not ready yet. ठीक है, अभी हमको एक और चीज करनी है. What we will do is now winnowing. ठीक है, winnowing में हम क्या करते हैं, जब हमारे बीजेस सेपरेट हो गए ना, तो उसमें क्या होता है, थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स भी रह जाते हैं. That is called husk. So what do? We blow wind in front of it. ठीक है, एक लिटरली एक फैन को लेकर के we blow wind in front of it. तो उससे क्या होगा, since the seeds are heavy, they are going to stay back, they are going to hold on to our container, and the husk and the dirt material which are lighter, what they will do, they will get flowed away with the wind. ठीक है, वो flow away हो जाएंगे आपके हवा के साथ. So that is called winnowing. Now winnowing के बाद फिर आप क्या करोगे, आप इसको स्टोर करोगे, आप इनको बैग्स में स्टोर करोगे. वी स्टोर इट इन द बैग एंड देन वी ट्रांसपोर्ट इट टू द मार्केट्स. हम इसको मार्केट में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. राइट, सो एवरीबडी टेक अ नोट ऑफ दिस लास्ट पॉइंट, स्टोरेज. अभी हमारा बाजरा इज रेडी नाउ एंड इट इज रेडी टू गो टू द मार्केट फ्रॉम वेयर वी कैन ऑल परचेज इट. संस्कृति इज गेटिंग सो एक्साइटेड, बाजरा रेडी हो गया फाइनली, अब रोटी खाने को मिलेगी, भाकरी खाने को मिलेगी फाइनली. लेकिन अभी आपको पता पड़ेगा काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है. Vedant, I hope you are taking notes. Vedant, Aryan, Tanvi, Swaraj, Santosh, Vedant, and Aryan. I want participation from you people also, okay? You people don't participate at all in the class. And Tanvi also. Great, thank you, Samruddhi. Thank you. Thank you, Yash. Thank you, Kartiki. Thank you, Samruddhi. Great. So most of you have noted this down. Great. So now with that, we will move ahead. People who are not able to note it down, they can note it down after the class. I will send you the PPT. Great. So now what we are going to do is we are going to observe a video. We are going to watch a video and we are going to observe the process of threshing and winnowing in action. Are you all excited to watch it in action? कुछ बड़ी बड़ी मशीन्स देखेंगे हम एंड काम करते हुए देखेंगे कि कैसे हम थ्रेश करके बेसिकली सेपरेट कर रहे हैं हमारे बाजरा को सभी कूड़ा कचड़ा से. ठीक है, सो अभी वीडियो देखते हैं. For the duration of video, you can keep the video switched off. Once the crop gets matured or ripen, it has to be gathered. The process of cutting and gathering a matured crop is known as harvesting. Harvesting is done in 3 steps. 1. Cutting the crop. 2. Separating grain from stalks, and 3. Removing chaff from grains. Harvesting can be done manually as well as with the help of machines. Let's see how crops are cut. Crop can be cut manually by using handheld tool called a sickle. In big farms, a large vehicle called harvester is used for cutting the crop. Harvesters save lot of time and labor. Next step is separating grains from stalk. This process is known as threshing. Manual threshing is done by beating the stalk against hard surface. Machines such as thresher are also used, which are very efficient. Some machines do both the parts of cutting and threshing together. These machines are called harvester combine. After threshing, grain obtained is mixed with remains of chaff and husk. Clean grains are obtained by winnowing. Winnowing can be done manually as Everybody observe closely here.
यहाँ पे what is this woman doing? This woman is rolling a fan. What are these? These are blades of a fan. ठीक है. So when she is rolling it, what is happening? The wind will blow. ठीक है. Air will start blowing. अब जब हवा चलना स्टार्ट होगी, what this man is doing? ये यहाँ से यहाँ पे बेसिकली बाजरा के सीड्स को गिरा रहा है. ठीक है. अब ये गिरा रहा है, यहाँ से हवा चल रही है. तो क्या होगा? लाइटर जो भी सारे डस्ट पार्टिकल्स है वो उड़ के आगे हो जाएंगे. ठीक है. They will get carried away with the wind and your heavier bajra seeds will fall down. तो यहाँ से क्लीन हो जाएंगे. ग्रेट. सो अभी पूरा वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग देखेंगे किसी को कोई डाउट है. As well as there are machines which perform winnowing task very fast. After harvesting, grains can be sold for economical gains. All over the world, harvest season is celebrated with excitement. Pongal in Tamil Nadu, Bihu in Assam, Holi in Punjab, Onam in Kerala are the few harvest festivals celebrated in India. Great. So let's start coming back. So all of you, I hope you got a good insight into harvesting. And सबने बड़ी बड़ी मशीन से कि कैसे काम होता है. एंड हार्वेस्टिंग का जो हमारा जो सीजन होता है ना, उसमें हमारे अलग अलग फेस्टिवल्स भी होते हैं, लाइक होली, ओनम, पोंगल. ठीक है. जब आपकी फसल कट रही होती है, बोलते हैं ना कि फसल कटने का सीजन है. So that is what we are referring to. Yes, प्रसाद. हम एक पार्ट भूल गए. उन्हें मतलब उन्हें जम्स नहीं लगने के लिए हम फवारते हैं ना लिक्विड इंसेक्टिसाइड्स. हाँ. सो इंसेक्टिसाइड आपका पहले का हार्वेस्टिंग से पहले का स्टेप होता है. हमने यहाँ पे सिर्फ हार्वेस्टिंग देखा कि कैसे कटिंग कर रहे हैं, कैसे फिर हम फिल्टर कर रहे हैं क्रॉप्स को. हाँ भैया, जब आप मन्नी के वो बारी जब रजिस्टर होती है तो फिर हम मुझे दलन भी करते हैं नहीं क्या, उससे पीस भी करते हैं बहुत, फिर उससे भाकरी बनाते हैं नहीं क्या. हाँ. तो वो आगे का स्टेप होने वाला है. संजना, वेयर वर यू फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम? आई डिडंट सी यू इन क्लास. आर यू जॉइनिंग इन जस्ट नाउ? भैया वो ना मैं भूल गई थी, इसलिए मैं लेट आ गई. मुझे लगा कि आपकी क्लास 1 PM होने वाली, इसलिए मैं भूल गई आना. वैलिड रीजन, वैलिड रीजन. मैं खेलने में व्यस्त थी, इसलिए मैं जब आई मैंने देखा तो मैं लेट हो गई थी. नहीं, एकदम जस्टिफाइड रीजन है. खेलने में बिजी थे संजना, है ना. सॉरी भैया. खेलने में बिजी थे. बिजी लोग हैं यहाँ पे इतने सारे, बड़े बड़े काम में बिजी रहते हैं. तो क्लास तो होती रहेगी यार, खेलो ऐश करो ना. चलो. तो अभी हम आगे देखते हैं. अभी स्टोरी हमारी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है. ठीक है. अभी हमारी स्टोरी बाकी है. ठीक है. अभी भाकरी में लेके थोड़े से और स्टेप्स करने हैं हमको. सो नाउ अभी हम क्या करेंगे, बेसिकली हम मार्केट में हमारी फाइनली बाजरा के जो ग्रेन्स है वो पहुंच चुके हैं. अब उनको स्टोर से हम लोग उठा के लाएंगे, खरीद के लाएंगे. ठीक है. सो वी विल बाय इट नाउ. फिर हम क्या करेंगे, वी विल पुट इट इन द मिल. हम उसको आटा चक्की में जाकर के पिसवाएंगे. ठीक है. फिर फाइनली वी विल गेट पाउडरिश फ्लोर आउट ऑफ इट. फिर क्या करेंगे, वी विल पुट वाटर इन इट. यहाँ से आपकी मम्मी आपको बेटर बता पाएंगे कि आगे के क्या स्टेप्स रहते हैं. उसमें पानी डालते हैं. देन वी बेसिकली द फ्लोर इज नीडेड इनटू लम्प्स. इसका मतलब कि हम क्या करते हैं, जो बेसिकली फ्लोर है उसको आटे में गूंद लेते हैं. आटे में जब हमने एक बार गूंद लिया, उसके बाद उसको बेलना चकले से वी फ्लैटन इट डाउन इनटू भाकरी शेप. भाकरी मतलब राउंड राउंड रोटी की शेप में हमने उसको गोल गोल कर लिया. फिर उसके बाद गैस पे हमने थोड़ा सा गैस खर्च किया. वी आर स्पेंडिंग फ्यूल. ठीक है. फिर हमने तवा गरम किया एंड उस पर अपनी रोटी डाली एंड फाइनली भाकरी सिक गई हमारी, और हमारे प्लेट पे ये गर्मा गर्म भाकरी रेडी होके आ गई. ग्रेट. सो इतनी लंबी कहानी थी, इतने सारे काम करने पड़े हमको एक भाकरी खाने के लिए. नाउ टेल मी विल यू एवर वांट टू वेस्ट दिस फूड? आपको मान लो दो भाकरी आपको एक प्लेट पे एक्स्ट्रा आ गई, देन शुड यू थ्रो इट, शुड यू एवर वेस्ट इट, नोइंग दैट पीछे इतने लोगों की मेहनत लग रही है, इतना सारा काम लग रहा है ये सब करने के लिए. Type yes or no in the chat box, and meanwhile I will take few responses from people who are raising their hand as well. Yes, Kartiki. मतलब इतनी मेहनत मतलब लगती नहीं. आई थिंक इतनी मेहनत नहीं लगती है. कार्तिकी कह रही है मेरे को तो नहीं लगता इतनी मेहनत लगती है. So मैं तो वेस्ट कर दूंगी. आती है वो करना. तो बेसिकली
everybody is saying no, we should not waste this food, क्योंकि पीछे इतनी मेहनत लग रही है और उसके बाद हम लोग मार्केट से खरीद रहे हैं, तो मेहनत के साथ we are paying money also, our money is getting paid, then we are spending fuel, हम उस पे basically fuel खर्च कर रहे हैं, and then उसके बाद finally हमारे प्लेट पे बन के आ रही है. So basically this is the value of food. जो हम आज जो चैप्टर पढ़ रहे थे, the value of food, उसका क्या मतलब निकल के आया, ये जो हमने स्टोरी ऑफ भाकरी देखी कि एक भाकरी बनाने के लिए पीछे इतनी सारी बैकग्राउंड में इतनी सारी चीजें चल रही है, तब जाके एक भाकरी हमारी प्लेट पे आ पा रही है, जिसको हम एंजॉय कर पा रहे हैं घी और बटर के साथ बढ़िया बढ़िया खा पा रहे हैं. तो इसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में. यस, थैंक यू यश फॉर शोइंग इट. तो ये तो थी एक भाकरी की कहानी. अब ऐसी आपकी प्लेट्स में जो हमने पहली स्लाइड पे जो प्लेट देखी थी, उसमें इतने सारे खाने के आइटम्स थे. सिर्फ आप भाकरी थोड़े खाते हो खाने में, आप सब्जी खाते हो, आप दाल खाते हो, दी वेजिटेबल्स, दी पल्सेस. सो उन सब की अपनी अलग अलग स्टोरी है. अब उन सब की स्टोरी हम सीखने बैठेंगे तो आपको पता पड़ेगा उन सब के पीछे अलग लेवल की मेहनत लग रही है. सो उन सब के पीछे क्या मेहनत लग रही है, so this is what you can identify by reading this thing on your book, from your book. So you can read this asynchronously. So basically what I will do is quickly just read it loud for you, and you can make sense of it yourself and read it after the class. कि ये तो थी हमारी भाकरी की कहानी. सिमिलरली हम जब फिश खाते हैं तो फिश हमको वाटर से मिलती है, पानी से. तो उसके लिए कौन मेहनत कर रहा है? पहले फिशरमैन मेहनत कर रहा है फिश को पकड़ने के लिए, ठीक है. फिर उसके बाद फिर उसको पकाने के लिए फिर अगेन फ्यूल लगता है, वो भी मार्केट में जाता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है आपका, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, a lot of hard work and a lot of money is required to bring all the food items on your plate. ठीक है. तो over here you can see a lot of hard work is required. ठीक है. The efforts and labor of many people are required for storing, transporting and preparing the various dishes which we eat. अलग हम जो अलग अलग इतने अलग अलग टाइप की डिश खाते हैं, उसको खाने के लिए पीछे स्टोरेज की, ट्रांसपोर्टेशन की, उसको मार्केट में ट्रांसपोर्ट करने की, उसको बनाने के पीछे बहुत सारी मेहनत लग रही है. सो दैट इज वाई इन बाय नो मीन्स वी शुड वेस्ट अवर फूड. So what you will do is read this yourself, and if you get any doubt you can ask me. Okay, so this is the story of all other different kinds of food which has been explained in a shortcut form. Bhakri's story which saw in detail, and जो बाकी सारा हम खाना खा रहे हैं, इतने सारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सबकी अपनी कहानी है, सबके पीछे मेहनत है, सबके पीछे मनी लग रहा है, फ्यूल लग रहा है, ट्रांसपोर्ट लग रहा है, राइट. So the point is food is extremely valuable. Food is extremely valuable. Everybody write this word in your notebook. Valuable. Food is extremely valuable. And we should never waste the food. Great. Few people who are raising their hands. I will quickly take their questions. Yes, Samruddhi Roth. I can see your hand is raised. Any questions? चलो चल ले तू हैंड का क्लियर. Any questions, Samruddhi? नो सर. Okay. If there are no questions, I can put you back on mute. Yes, Sanskriti. Any questions? भैया ये लिखना है. ये मैं आपको जब पीपीटी भेजूंगा ना तब लिखना, ठीक है, अभी मत लिखो. It will take a lot of time because there's a lot of text. ठीक है. You have to write it down and you have to understand its meaning as well. And कोई doubt आता है then you can ask me. ठीक है. These are simple English sentences which you can read for yourself and understand its meaning. Great. Yes, Rushali. भैया वैल्यूएबल का स्पेलिंग क्या है? VALUABLE. Yes, Omkar. अब भैया मैं फिर से रिपीट करूँ सारे स्टेप? कौन से? वो वाले हार्वेस्टिंग वाले भाकरी के स्टोरी के? मतलब हमने फर्स्ट भाकरी मतलब भाकरी की स्टोरी के वो मतलब शॉर्टकट में मैं करूँ एक्सप्लेन? करो. First, we rush the lamp of soil field to make it ready for level. Then we sow the seeds in the soil. Then we add nutrients to make the soil full of nutrients. We then fourth step. We then water our seeds, and this called irrigation. And the fifth, after that we remove the unweighted plants that have grown, that called weeding. And the sixth, now then our plants have grown, we cut it, called harvesting. Then seven,
we thresh it to get the grains to out. Means we have just down and up and down. We thresh the, we have grains, and the grains have the some seeds have bowing and eight. Now we store it in the bags and transport into the market. This call it storage. And 9, we respect the fruits. Yes, we value the food which we are getting. Thank you so much, Omkar, for summarizing it beautifully. So Omkar beautifully summarized it. So now science without experiments is really boring. ठीक है, अगर हमने इतना कुछ पढ़ा और उसके बाद उसको अप्लाई नहीं किया, उसको करके ही नहीं देखा, देन कोई पॉइंट है पढ़ने का? राइट, कोई पॉइंट नहीं है. सो अभी नाउ वी आर गोइंग टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, वापस से अपने अपने ग्लास को ले आओ. ठीक है, वी आर गोइंग टू डू सम बढ़िया से मस्त मस्त एक्सपेरिमेंट्स. Bring your glass of water, glass, bowl, anything would work. ठीक है, this time necessarily it has to be not necessarily a plastic glass. आप कटोरी भी ला सकते हो, कुछ भी ला सकते हो, ऐसा कंटेनर जिसमें पानी भरा हुआ है, बस पानी भर के ले आओ. People who have switched their videos off would request you to turn your videos on and do the experiment. Yes, भैया. Sorry, I unmuted you by mistake, Sanjana. Thank you, Samruddhi. Thank you, Kartiki. Thank you, Rushali. Great. So all of you have your water ready with you. Now what we are going to do is we are going to grow some food for ourselves. ठीक है, हम खुद के लिए अपना खाना खुद से उगाएंगे. ठीक है, सिंपल, हम अब मम्मी को तंग नहीं करेंगे खाना बनाने के लिए. अपना खाना हम खुद से पकाएंगे नहीं, पूरा उगाएंगे, उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे. ठीक है, जो भी सारे स्टेप्स हमने देखे उस स्टेप्स को प्रैक्टिकली करके हम अभी अपना खाना बनाएंगे. ठीक है, सो भैया ने क्या किया है, भैया हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ व्हीट seeds with himself. ठीक है, भैया will just show you. Just give me a minute. So भैया has bought this wheat के seeds. ये देखो, these are wheat seeds which भैया has brought. ठीक है, so what you will do is you will put this wheat seeds in this water. You will soak them inside the water. Okay, so everybody bring some wheat. Ask your father or ask your mother to give you some wheat and start putting them inside the water. Great, Bhaiya has beautifully put all the wheat inside the water. Some bubbles are coming. All of you can see this. Great. I'm gonna now put it on my table and let it settle down. I can see a lot of people are raising their hands. I'll take your question one by one. Yes, Rushali. भैया इतने ठीक है ना? हाँ, काफी है, काफी है. दिखाओ सभी, अपने अपने वेट को डालो पानी में, करके कैमरे में करके दिखाओ मेरे को. ग्रेट रुशाली, ऑसम. ग्रेट कार्तिकी. See how beautiful it is looking. Yes, Samruddhi. भैया is apple seeds okay? Apple seeds. Apple won't grow here, Samruddhi. Apple grows in winter. Right now. Do this with wheat, na? It will happen with wheat.
Ask your father or ask your mom to get wheat for you. You can do this after the class also. Okay, so great. So now people who have put their wheat in water, now what we are going to do is we are going to let it be inside the water till night. Okay, we will take it out from water. We will take it out from water at night. Okay, at what time we are going to take this out? Around 12 o'clock. So 12 बजे तो रात में काफी रात हो जाएगी. सो तब तक तो आप सो जाओगे. सो हम क्या करेंगे, सुबह निकालेंगे. ठीक है, इस वेट को हम लोग सुबह निकालेंगे अपने वाटर से. एंड देन व्हाट वी विल डू इज we will put it in the soil. So the next step which you are seeing after soaking is that soaking के बाद आप क्या करोगे, पानी पूरा फिर हटा दोगे यहाँ से एंड फिर अपने wheat को उठा करके आप soil में डालोगे. Soil में you will evenly spread it out. Evenly spread out करने के बाद इसमें आप हल्का सा पानी डालोगे and then you are going to observe it after 3 to 4 days. एंड उन 3 से 4 दिन में रेगुलरली आपको इसको वाटर करना है, थोड़ा 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 पानी डालना है. ठीक है, एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू टेक ऑब्जर्वेशन. एंड द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन इज दैट योर दीज वीट के सीड्स जो अभी आप देख रहे हो, जो बेचारे छोटे छोटे पड़े हुए हैं, दे विल ग्रो इनटू फुल्ली ग्रोन प्लांट्स. इतने बड़े बड़े आपके यहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे. एंड वी आर गोइंग टू डू दिस फॉर अराउंड 10 days. ठीक है, तो साइंस के एक्सपेरिमेंट में हर बार ऐसा नहीं होता कि फटाफट फटाफट एक्सपेरिमेंट किया आपने एंड आपको रिजल्ट मिल गया. ठीक है, यू नीड पेशेंस एज वेल एंड आपको डेली डेली थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए. तो अभी आपके पास ये है. ठीक है, कल सुबह हम इसमें से पानी निकालेंगे एंड अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. सभी इसको किचन में या टेबल पे एक जगह ला करके रख दो एंड देन लेट्स जस्ट कीप इट आइडल. ओके, पीपल अभी जिनको डाउट आ रहे हैं उनसे आई विल आस्क देयर क्वेश्चंस. भैया मैंने एक ब्रिंजल का लगाया है और एक पोमोग्रेनेट का प्लांट लगाया है. ग्रेट, ऑसम ऑसम. ये जो जिन्होंने पहले से कुछ कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं, दे कैन सेंड देयर पिक्चर्स कि वो कैसे कैसे ग्रो हुए. यस संजना. भैया मैं बोल रही थी ना, अगर हमने सुबह उसको निकाल के हम अगर उसको सॉइल में डाल देंगे तो वो उसको उगने में बहुत दिन लगेंगे ना? बहुत दिन नहीं लगेंगे, 4-5 दिन में ग्रो हो जाएगा. छोटा छोटा भैया. हाय स्टूडेंट्स, सॉरी यार देयर वाज समवन एट माय डोर. ठीक है, तो अभी आप सबने एक्सपेरिमेंट कर लिया राइट. अभी देखो सब कुछ कुछ लोग अपने प्लांट्स भी दिखा रहे हैं. अभी हम इसको सिर्फ एक जगह रख देंगे. ठीक है, वी विल लेट इट सेटल डाउन एंड कल सुबह इसमें से पानी निकाल के वी विल पुट इट इन द सॉइल एंड डेली थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे एंड वी विल ऑब्जर्व कि कैसे ग्रो कर रहा है राइट. अभी जो क्वेश्चन है, यस संस्कृति इज लिटरली डांसिंग. बोलो क्या हो गया? भैया मराठी मिस ने बोला था तो मैंने एक प्लांट लगाया था. वाओ, ऑसम संस्कृति, दिस लुक्स ग्रेट. ठीक है, सो ये सारे प्लांट्स तो आपके नॉर्मल प्लांट्स हो गए. अभी आपका वीट प्लांट जो है, इससे हम लोग लिटरली गेहूं उगाने की कोशिश करेंगे राइट. इससे हम वीट उगाएंगे एंड देखेंगे इस वीट का हम बाद में आटा बना के इससे रोटी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते राइट. इससे हम खाना बनाएंगे लिटरली. So this experiment stakes are a little higher than simply growing plants. So are you all excited for this experiment? Yes. Wait, I'll just allow everybody to unmute.
and give me a good shout out if you are all excited for this experiment. भैया तो ये टोटल, तो ये बढ़िया फुल ग्रोन, देखो फुल ग्रोन वीट आपको। भैया ये मैंने उगाया है कांदा पात। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी उगाया। भैया ये देखो मैंने उगाया है। Awesome, awesome. तो देखो इसको उगाने में, वीट को उगाने में टोटल आपको रिजल्ट्स तो देखने को मिलेंगे ना, वो 1.5 मंथ में देखने को भैया 1.5 मंथ टोटल कितना हुआ, अराउंड 45 डेज बाद आपको फुल्ली ग्रोन वीट देखने को मिलेगा। 5 से 10 दिन में सिर्फ आपका वीट ग्रास आएगा ऊपर। उसके बाद जो फुल्ली ग्रोन जो वीट आपका आएगा ना, जिसमें से आप वीट तोड़ पाओगे, दैट विल कम आफ्टर 1.5 मंथ्स, दैट इज रफली 45 डेज। तो 45 डेज तक आपको इसको पानी देना है, प्रॉपर सनलाइट में रखना है एंड प्रॉपरली ग्रो करना है। सो बताओ इतनी मेहनत जब आप करोगे तो उससे क्या होगा, इतनी मेहनत करने के बाद क्या होगा? It will grow. It will grow भैया। It will grow भैया। It will grow भैया। Grow Yes, हो Karthik. जाएगा। भैया and Thank we you so are much for sharing. farm in home. थैंक यू। कार्तिकी आप कुछ बोल रहे हो? हाँ भैया, मतलब मैं किचन में गई थी ना, तो मुझे समझ में नहीं आया कि हमें नेक्स्ट स्टेप पर क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको सुबह क्या करना है, इसमें से पानी निकालना है। अभी आपको एक तरफ रख देना है ये, ठीक है, पानी में भिगो दिया आपने इसको। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आप क्या करोगे, इसमें से पूरा पानी हटा दोगे एंड देन इसको मिट्टी में डाल दोगे। देखो सॉइल में जैसे स्प्रेड किया हुआ है ना, इसे सॉइल में स्प्रेड कर दोगे एंड हल्का सा ऊपर पानी डाल दोगे, हल्का हल्का ऊपर, एंड देन आप उसको छोड़ दोगे एंड फिर डेली आप पानी डाल दोगे। प्लांट बैठे उसी का थोड़ा पानी डालो। फ्लावर्स पानी में रखते हैं ना। हाँ, भैया मैं आपको फोटो भेजता हूँ मेरे पोमोग्रेनेट प्लांट का और ब्रिंजल का। यस यस, ऑसम ऑसम, यू कैन सेंड इट। तो जब आप ये काम आप नेक्स्ट 45 डेज तक करोगे तब जाके भैया आपको फोटो वीडियो भेजो, मैंने पिछले बार उगाए थे इसका। तो जब आप नेक्स्ट 45 डेज तक ये करोगे ना, जब ये आपका वीट फाइनली ग्रो करेगा, सो व्हेन यू विल डू दिस एक्सपेरिमेंट, व्हाट यू विल रियलाइज इज दैट बेसिकली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फूड। जो हमारा आजकल टॉपिक था, द वैल्यू ऑफ फूड, उस चीज को आप लिटरली खुद से समझोगे करके कि इतनी मेहनत लगती है खाने को तैयार करने में। सो दिस विल गेट रियली क्लियर इन योर माइंड्स। आपके दिमाग और दिल में उतर जाएगा कि फूड की क्या वैल्यू होती है एंड कितनी मेहनत लगती है फूड को करने में। So hopefully after this nobody will waste their food and everybody is excited for the experiment. With that, our science class is over now. I will see you at 2 o'clock. So it's already 1:30. So I'll give you 1 hour break. Let's meet at 2:30. Right? Our class जो हमारी 2 बजे होती थी उसको let's do at 2:30 and for at 2:30 we will meet again. But at 2:30 PM we will study maths, ठीक है। साइंस में अभी हमारा कंप्लीट हो गया पोर्शन। साइंस अभी हम कल दूसरी साइंस की क्लास में देखेंगे। अभी दोपहर में हम लोग 2:30 पे थोड़ा सा मैथ्स देखेंगे। एंगल्स पे हमने, याद करो पिछला क्लास हमने एंगल्स पे छोड़ा था, ठीक है। अभी राइट नाउ हम एंगल्स के बाद का जो हमारा टॉपिक था उसको कवर करेंगे। ग्रेट। सो एवरीबडी, आर ऑल ऑफ यू एक्साइटेड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट एंड टू ग्रो योर प्लांट्स? Yes. 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 भैया। Woohoo, great. So I'll see you at 2:30 PM. But भैया Bye, 3 everybody. PM भैया 3 PM की क्लास होता है। हाँ, मराठी क्लास है ना, so I will leave you in half an hour only. सिर्फ half an hour की क्लास करेंगे, ठीक है? There is not a Marathi class because they hasn't sent the link. ग्रेट। तो हाफ आवर से 1 घंटे की क्लास कर लेंगे। अगर मराठी में इसकी क्लास हुई देन मैं आपको आधे घंटे में छोड़ दूंगा एंड अगर नहीं हुई तो फिर 1 घंटे क्लास। भैया आपने